हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस समय अपने घर पर रह करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आप अपने टीचर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर भी कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, राइट नाउ one thing is going in a wrong way. These are the videos is made for you all, not for a single person. Anybody can watch this video, but especially it is recommended that small kids who belongs to class 6 and who are studying the computer, that must watch the video. Okay students, so with this wish, let me introduce myself. This is your computer science teacher Virendra, and I am here to give you the important lecture based on chapter number 3, that is your mail merge, right? And mail merge is the feature which is used in Microsoft Word, right? So before starting the lecture, I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. Please watch the other videos which is already uploaded and give your like, comments and subscribe my channel, right? So now it's time to start this video. In this video, what topic is going to cover, let me write on the board and then we'll proceed further, right? So in the topic, we'll try to cover 3 things. Number 1, inserting merged field. Second topic, we are going to cover weaving merged data, right? Then after, we'll have printing the letter. These 3 things we're going to cover in this video. So in this video, the most important thing is we'll also have the practical demonstration about each and everything, right? We'll also give some of the extra knowledge regarding this mail merge, okay, so that you can have the efficient knowledge, right? So what are you waiting for? Please come to my laptop to have the practical demonstration about the same, and then we'll have a small doubt session also, right? Please come. Okay students, in the last video we have understand about how to create the main document and how to create the recipient list. In this video, we'll try to cover out 3 topics. Number 1, inserting merge field, weaving the merged data, and last, printing the letters. So students, first of all, we'll try to open the main document which is already made, and after that we'll try to attach the data source with that main document, right? So students, without wasting any of the time, let's come. First of all, this is my laptop screen. In this screen, we'll have one file, mail merge example1. Double click on that. It is trying to open now. Finally, as you know that the address list is already built in the last video. That's why it is asking. Right now in this window, 2 buttons are there, yes or no. Suppose if you click yes, it means you are going to use the database which is already created. You are going to use the address list which is already created. If you don't, you have to click no. Clear? So this is the meaning. Now I am going to click yes. Finally, it is now open. Now it's time to again come with the mailing tab. Then after going to the mailing tab, you have to click on select recipient in the start mail merge group,
ओके, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में एक बटन है सेलेक्ट रेसिपिएंट, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने बना रखा है। क्लिक करेंगे इस पर। फाइनली दिस विंडो ओपन्स। इन दिस विंडो you have to select this one NSA and click on open button. Finally it's done. Now it's time to understand how to merge the field, how to insert the merge field. जो merge field है वो हम कैसे insert करें हम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को स्टार्टिंग में ले आएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और ऐसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसे 2-3 बार प्रेस कर देंगे और कर्सर को दोबारा हम माउस की हेल्प से क्लिक कर देंगे ऊपर। अब हमारे पास मेलिंग टैब में दूसरा एक और ग्रुप है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये ग्रुप है हमारे पास। इस ग्रुप में हमारे पास एक बटन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। हमें क्या करना है, जो हमने डॉक्यूमेंट अभी भी बनाया है उसमें मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना। मर्ज फील्ड का मतलब ये होता है कि एड्रेस लिस्ट में जो आपने डिटेल्स तैयार की हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब कुछ आपने, ठीक है। तो एक एक करके मुझे समय आपको बिल्कुल उस इन्विटेशन कार्ड के लिए आपको वो जगह पे आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे वो सारा जो डिटेल है वो ऐड होगा। ओके, मुझे टॉप में चाहिए इसलिए मैंने कर्सर क्लिक कर दिया है टॉप में, इस तरह से। ओके, क्लिक 1 टाइम हियर। सबसे पहले मुझे टाइटल मतलब मिस्टर मिसेज इस तरह चाहिए मुझे टाइटल। टाइटल के बाद एक सिंगल स्पेस, मैंने स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ले लिया फर्स्ट नेम। ऐसे क्लिक करिए फर्स्ट नेम पे, फिर एक स्पेस, फिर इस बाद लास्ट नेम। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कॉमा, ऐसे मैंने कॉमा लगा दिया, इंटर दबा दिया। अब मुझे अगली लाइन पे नेक्स्ट डिटेल चाहिए। नेक्स्ट डिटेल मैंने ले लिया है कंपनी नेम। कंपनी नेम के बाद कॉमा, कॉमा के बाद इंटर, इंटर के बाद अब हम लेंगे एड्रेस लाइन 1 कॉमा, एड्रेस लाइन 2 अगेन कॉमा, एड्रेस लाइन 3 नहीं है यहाँ पर, सिटी ले लेते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद कॉमा इंटर। फिर इसके बाद अब हम ले लेते हैं स्टेट। स्टेट के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर पिन कोड, कौन सा पिन कोड होगा यहाँ पर, जिप कोड को ही पिन कोड कहते हैं। फिर इसके बाद कंट्री, फिर इसके बाद फुल स्टॉप इंटर। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर वर्क फोन, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने इंटर की थी और यहाँ से अब आप डिलीट को प्रेस कर दें ताकि एक प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग आपकी रहे। तो इस तरीके से अब आपने क्या किया है, जो मर्ज फील्ड है उसको आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे तक ज़रूर पहुँचें व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब कमेंट के ज़रिए, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो कब अपलोड हुआ है। ओके, चलिए। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मर्ज डेटा है उसको हम कैसे व्यू करें, किस तरीके से हम देखेंगे। कहने का मतलब अब आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस डॉक्यूमेंट में ठीक है, दो चीज़ें मर्ज हैं। नंबर 1 एड्रेस लिस्ट, उसके लिए प्रॉपर स्पेस है यहाँ पर हमने दे दिया है, प्रॉपर हमने जो फील्ड से इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर प्रॉपर फील्ड जब इंसर्ट हो गया है, इंसर्ट होने के बाद हमने जो कॉमन मैसेज है वो भी हमने यहाँ पे रखा है। दो चीज़ें एक ही जगह पर। इसी डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे, इसी को हम बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट। जब आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आ जाएगा तो वही डॉक्यूमेंट आपका कहलाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। और उसी डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट आउट ले लेते हैं हम, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है अब आपको क्या करना है, बस आपको अब जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू देखना है। अब आपको प्रीव्यू कैसे देखेंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मर्ज डेटा को व्यू करने जा रहे हैं। ओके, चलिए देखिए। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर इन मेलिंग टैब। सो फर्स्ट आई हैव यूज्ड द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप फॉर क्रिएटिंग द address list as well as main document.
Then after, for inserting the merge field, I have used here write and insert field group. Okay, and then after, right now I'm going to use the preview result group. In this, one button is there, preview results, right? Click one time. So right now this is the particular view of your merged document. आपने क्या किया है, जो merged document है वो अब आपका उसका व्यू दिखेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं अगले रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो बटन आप देख रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। देखिए अगला रिकॉर्ड आ गया। फिर इसके बाद थर्ड पे देखिए, ये थर्ड रिकॉर्ड है और ये रहा फोर्थ रिकॉर्ड। इस तरह करके आप हर रिकॉर्ड को कर सकते हैं आप। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है यहाँ पर। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ एड्रेस लिस्ट में कमी है, कुछ चेंजेस करना बाकी रह गया है, तो अभी भी आप कर सकते हैं। या आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, इस डॉक्यूमेंट में ही कोई कमी है, उस कमी को दूर करना चाहते हैं, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये दोनों काम कैसे करेंगे ये मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ मैं। So students, please get ready. We are going to understand how we are going to edit the recipient list. Okay, first of all, right now this is your mailing tab. In this mailing tab, your group is start mail merge, and this is the button edit mailing list. Click one time. Right now one window is appeared here, one window is appeared, and this window is known as mail merge recipient. Okay, so in this you are able to see the each and every field name here, right? Last name, first name, title, company name, each and everything are viewed. Okay, and you want to edit, just click this one, data source name, and click on edit. Finally, edit data source window comes. In this window, place your cursor, and where you want to place, you want to edit your each and everything. And finally, once it's done, click on OK button. Okay, so this is the way to edit your data source. Okay, right now I'm just going to cancel now. So मैंने इस तरह से कैंसिल कर दिया। So students, अभी तक आपने क्या देख लिया है, आपने किस तरीके से मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना है, अपने रेसिपिएंट लिस्ट को कैसे एडिट करना है, ये आप समझ गए हैं आप, और किस तरीके से अपने मर्ज डेटा को व्यू करना है, ये कैसे होगा, ये आपने यहाँ तक देख लिया है। अब फाइनल और लास्ट स्टेप की बारी है। इस लास्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करेंगे, या फिर किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में ये दो चीज़ें हम देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्या करते हैं हम, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को एडिट करना है ये हम देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज, इस बटन पर क्लिक करना है। ये बटन कहाँ मिलेगा, मेलिंग टैब के अंदर है। मेलिंग टैब में एक ग्रुप है जिसका नाम है फिनिश। फिनिश के अंदर एक और बटन है जिसका नाम है फिनिश एंड मर्ज। क्लिक करते हैं, यहीं पर आपका मेल मर्ज कंप्लीट होता है। क्लिक करते हैं, 3 बटन दिखाई देंगे यहाँ पर। पहला है इंडिविजुअल, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, कि अगर आपने 4 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, चारों डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार। क्लिक करके ये विंडो आ गई। इस विंडो का नाम है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। अब ये ऑल रहने दीजिए, ओके कर देते हैं। अब आपके सामने एक एक करके सारे आ जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा पहला, दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। तो अगर आप अपना कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने कर्सर को प्लेस करें, और प्लेस करने के बाद अब आप यहाँ पर कोई एडिटिंग कर देते हैं आप, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक एडिटिंग कर देते हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना नाम, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करके बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हम बारी बारी करके पेस्ट कर देंगे हम। ये हमारा लास्ट वाला है, ऐसे मैंने Ctrl V कर दिया।
अब आते हैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, एक और हमारा बचा हुआ है, कर्सर इस तरह प्लेस करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। अब देखिए फाइनल इतना होने के बाद अब आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर जो आप नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। मैं वही नाम देना चाहता हूँ जो मैंने पहले किया था। इस तरीके से मैं ब्राउज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक जितना भी आपने देखा वो आपने देखा कि एडिट कैसे करना है, इंसर्ट मर्ज फिट कैसे करना है, प्रीव्यू कैसे करना है, रेसिपिएंट लिस्ट को एडिट कैसे करना है। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप पे। जो लास्ट स्टेप है वो आपका है प्रिंट करने का, कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें हम, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं, तो देख लेते हैं कैसे करना है। क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट अब चारों डॉक्यूमेंट हमारा रेडी है। अब सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद देखिए सब कुछ डिसेबल्ड है, क्योंकि आपने फिर से जो लिस्ट वगैरह है वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नया फाइल बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। आप इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को ले लीजिए, ठीक है। फाइल सेलेक्ट हो गई यहाँ पर। फाइनली देखिए आपका आ गया यहाँ पे जाइए आप और यहाँ क्लिक करिए आप, फिनिश एंड मर्ज पे हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जाएंगे हम प्रिंट डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर हमें मर्ज टू प्रिंटर विंडो आ गया और इसी विंडो पे अब हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके कर देते हैं। अब आपके सामने एक और विंडो आ गई है, इस विंडो का नाम है प्रिंट विंडो। अब इस विंडो में कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको मैं, ठीक है। जैसे अभी आप यहाँ देखिए ऑल पे सेलेक्ट किया है आपने, ऑल मतलब जितने पेजेस हैं उतने पेजेस आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पेजेस देना चाहते हैं, अगर आपको कुछ ही पेजेस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टोटल 4 पेजेस हैं, अब आपको जो इवेंट पेजेस हैं या और पेजेस उसकी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह से चाहिए, पहला पेज चाहिए, पहले के बाद मुझे चाहिए चौथा पेज चाहिए, तो आप 1,4 लिखेंगे, ओके करेंगे और केवल पहला और चौथा ही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पहला और चौथा ये दोनों पेजेस के 2-2 कॉपी चाहिए, तो अब आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पे जाएंगे राइट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पर ये आपका इंक्रीज़ बटन है, ऐसे इंक्रीज़ कर देंगे। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हैं आप। फ़िलहाल मुझे में एक ही चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ 1 पे, डिक्रीज़ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि अगर आप यहाँ सभी पेजेस को नहीं चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर केवल और केवल 1 जो पेज नंबर है वो लिखेंगे, कॉमा उसके बाद जो पेज नंबर है वो लिखेंगे आप, ठीक है। सो प्लीज़ इंश्योर दैट whatever the pages you want to print, comma is very necessary, and whatever the number of copies you want to take print, just mention in the number of copies box, right? And finally, not the least, one more thing I just want to give you, that whenever you want the orientation of this page into landscape or portrait, how we are going to do that, the print setting, ठीक है। कभी कभी अभी आपने जो व्यू देखा है, इस व्यू को बोलते हैं पोर्ट्रेट, क्योंकि आपने इसमें आपकी जो लंबाई है कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, ओके। सेम वे इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ एंड डिक्रीज द ब्रेथ, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ओके। जैसे आपने देखा पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो है, तो पोस्ट कार्ड साइज़ का जो फ़ोटो होता है वो होता है आपका लैंडस्केप में होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई आपने अपनी बुक को देखा तो वो पोर्ट्रेट में होता है, ठीक है। तो किस तरीके से सेटिंग करते हैं देख लेते हैं। छोटा सा है, हमने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे देखिए ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा, तो अगर हमने वो लैंडस्केप पे सेलेक्ट किया हुआ है तो लैंडस्केप आपको मिलेगा, पोर्ट्रेट किया हुआ तो हमें पोर्ट्रेट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है यहाँ पर, कि जब हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं हम, तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद उस समय जो विड्थ होगी वो 8.27 इंचेस होगी और हाइट हो जाएगी 11.69 इंचेस,
ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप लैंडस्केप में करते हैं तो देखिए लैंडस्केप में उसी का उल्टा हो गया, जो विड्थ है 11.69 हो गया और जो हाइट है वो हो गया 8.27। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको पोर्ट्रेट पर रख देता हूँ मैं, और इसको मैं कर दूंगा ओके। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीज़ें होने के बाद अब हम ओके कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर ओके करूँगा। अब थोड़ा सा वेट करिए, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। फाइनली once you clicked on print button, your process is started now. See, it will take a little bit of time. Meanwhile, I just want to say one more thing. Please don't forget to subscribe my channel. Also, you have to press the bell icon, because bell icon gives you a one kind of notification to have the update of my video, right? And don't forget to share this video to your friends. Okay, is it clear? So students, right now this is the view which will come once you want to take a printout. This is the one kind of preview. So right now in my computer I have installed the OneNote application to view the printout, that how it look like. Okay, so right now this is the view of your main document as well as your merge document, right? So in this view you can just able to observe here like this. आप इस तरह से स्क्रॉल करके हर एक पेज को आप देख सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक और है हमारा, देखिए ये रहा। So students, I hope each and everything is clear to you, and whatever the queries you have, you can ask on my WhatsApp number as well as on the YouTube comment. I'm always here to give you reply, to give you the resolution of the questions. Okay students, so we'll meet in next video to have more details about the same. Okay, okay students, I hope each and everything is very much clear to you. By seeing the practical demonstration of these three topics is very much understandable by you. And before ending this video, I just want to say that main merge means chapter number 3. This chapter consists of 3 videos. Part 1, okay, and that is the introductory. Part 2, you were having the creating the main document as well as the address list. Part 3, you were having these 3 topics. So you have to watch the 3 videos regarding the same, right? So that you can understand each and everything. With this, I am Virendra is going to finish up this video, and we'll meet in next video to have more about with new topic. Okay, thanks for watching.